نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال محتہمی۔ بڑی محبت سے ایک مرتبہ درود پاک آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ صاحب صدر، اکابرین ملت، حضرات علماء کرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب اپنے مخدوم حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت میں اس مرکز حقہ میں جمع ہیں۔ وقت انتہائی مختصر ہے۔ میرے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میرے ہم نام حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب نے اس پروگرام کے حوالے سے کہ ان کے صاحبزادے مولانا انعام الرحمن صاحب، حافظ نعیم صاحب نے بھی اس مرتبہ اسی ادارے سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کو پتہ چلا تو مجھے حکم دیا کہ میں اس پروگرام میں حاضری ضرور دوں، اسی نسبت سے میں حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ وقت مختصر ہے اور شاعر نے کہا تھا کہ تو باطن میں ابھر کر ضبط فغاں، لے اپنی نظر سے کار زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ اس لیے میں تقریر کے حق میں نہیں ہوں۔ مولانا احمد حنیف صاحب نے بھی فرمایا کہ اکابرین آنے والے ہیں، میں ان کے آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، لیکن دو باتیں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دینی مدارس آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک باقی رہیں گے۔ جواب ذرا مجاہدوں کی طرح آنا چاہیے، ابھی بھی صحیح جواب نہیں آیا ہے، ہاتھ لہرا کے کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ دنیا چاہتی ہے مدرسے مٹ جائیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کفر جتنا زور لگانا چاہے لگا لے، انشاءاللہ مدرسہ بھی باقی رہے گا، عالم دین بھی باقی رہے گا اور انشاءاللہ طلباء بھی باقی رہیں گے۔ حضرات محترم، آج دنیا کہتی ہے ان مدرسوں سے اللہ کے قرآن کی آواز نہیں گونجنی چاہیے، ان مدرسوں میں صحائے ستہ نہ پڑھائی جائے، ان مدرسوں میں آنے والے طلباء کو دین کا علم نہ دیا جائے، لیکن یاد رکھنا یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اس امت کے ذمہ نہیں لگائی ہے، اس قرآن کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اور آج میں چند لفظوں میں کچھ یوں کہوں، پوری دنیا کو چیلنج کیجئے، تو رات کا حافظ لے کر آئیے، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں، آئیے ہمارے مقابلے پر انجیل کا حافظ لے کر آئیے۔ ہم ان دیگر مذاہب کے لوگوں سے کہتے ہیں گرنتھ کا حافظ لے کر آئیے، وید کا حافظ لے کر آئیے، زبور کا حافظ لے کر آئیے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن والوں کے مقابلے پر نہیں آ سکتے ہیں، لیکن آج وہ اگر چیلنج کریں خیر المدارس کے مدرسے کو، ملتان کے چھوٹے سے مدرسے کو، مولانا خلیل الرحمن درخواسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صدیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ عبدالصمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے مدرسے کو چیلنج کریں کہ تم اپنی کتاب کا حافظ لے کر آؤ، تو میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے ہم ان کے مقابلے پر آنکھوں والے نہیں نابینا پیش کر دیں گے۔ آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی، ذرا اور آواز آنی چاہیے۔ نابینا آئیں گے، رمضان آنے والا ہے، رمضان میں
मदरसों की खेप उठेगी। आज दुनिया कहती है मदरसों ने हमें क्या दिया है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मदरसों ने किन लोगों को दिया है। मदरसे ने शयूख दिए हैं, मदरसे ने हदीस का उस्ताद दिया है, मदरसे ने कुरान की तफसीर पढ़ाने वाला उस्ताद दिया है, हुफ़ाज़ दिए हैं, कुर्रा दिए हैं, उलमा दिए हैं, अतकिया दिए हैं, अबरार दिए हैं, सुलहा दिए हैं, जिनकी बदौलत आज दीन हक का परचम बुलंद होता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक बुलंद होता रहेगा। ऊंची आवाज़ से इंशाअल्लाह। मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आइए आपकी तर्जुमानी करना चाहता हूँ। मेरे कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया अलील हैं, अल्लाह का फजल है, सेहत पहले से बहुत बेहतर है। हम उनके लिए यहाँ पर भी दुआ करेंगे और आपने खलवत में भी दुआ करनी है। मेरा तालिब इल्म उठे, तहज्जुद के वक्त उठे, अल्लाह के सामने झुके। अभी मेरे बुजुर्ग आपके सामने शायराना अंदाज में बड़ी खूबसूरत बातें कह रहे थे। हज़रत कारी साहब को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। मेरे जवान, मेरे तलबा, मेरे उलमा, ये आने वाले लोग तहज्जुद के वक्त उठे, मोबाइल जेब में पड़ा है, इस पे अलार्म लगाए। इस अलार्म पे तहज्जुद के वक्त जब अलार्म बोलेगा उस वक्त उठिए, वुज़ू कीजिए, 2 रकात पढ़िए, सजदे में पढ़िए, अल्लाह से मांगते जाइए। मांगना आपका काम है, देना मेरे रब का काम है। सारी कायनात को वही देता है। आज ये उलमा मैदान में उतरने वाले हैं, ये आलिम बने नहीं है। हुफ़ाज़ मैदान में आ चुके हैं, ये हाफिज बने नहीं है। हजरत कारी साहब की मेहनतें हैं, उलमा की मेहनतें हैं, असातिज़ा की मेहनतें हैं, साहबजादा गिरामी कदर दिन रात इसमें मसरूफ़ अमल है। लेकिन याद रखिए, इन्हें भी मेरे रब ने चुना है और इन्हें भी मेरे रब ने चुना है, उन्हें भी मेरे रब ने चुना है। ये मेरे अकाबर बैठे हुए हैं, इन्हें भी मेरे रब ने चुना है। जरा मुल्तान के इस मरकज में बैठकर हक का कलमा बुलंद कीजिए। सबको चुनने वाला नीली छत वाला है, जरा मिल के बता दीजिए उसका नाम क्या है। आवाज नहीं आई है, आवाज नहीं आई है। फिर मिलकर कह दीजिए, दिल से कह दीजिए। हज़रत मुफ्ती हसन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत ख्वाजा साहब भी बैठे हुए हैं, खानकाहों को सजा के बैठे हुए हैं। इल्लल्लाह की ज़रबें लगती है, इन्हें मामूली न जानिए। इन्हीं ज़रबों की वजह से आज दुनिया कायम है और इंशाअल्लाह ये ज़रबें लगती रहेंगी। ज़रा मिल के कह दीजिए अल्लाह, दिल से कह दीजिए, जोर लगा के कह दीजिए, हाथ उठा के कह दीजिए। अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए, मुजाहिदीन की आवाज़ और उसी जज्बे में नारे तकबीर। जिनको मुजाहिदीन से मोहब्बत है, जो जिहाद से मोहब्बत करते हैं, जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, जो देवबंद के नाम लेवा हैं, बुलंद करके हाथ उठाकर नारा लगाइए मुजाहिदीन की आवाज में और दुनिया को बता दीजिए कि तुम लाख कोशिशें कर लो, इन मदारिस को बंद नहीं कर सकते। नारा तकबीर, नारा तकबीर। और अब जो मैं नारा लगाऊंगा उसके जवाब में आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत। जो जो देवबंदी है, जिसको देवबंदी होने पर फख्र और नाज है, वह खड़ा होकर मेरे इस नारे का जवाब देगा। नशिस्तों पर बैठे हुए नहीं, खड़े हो जाइए। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद। तशरीफ रखिए। मैं तो आपको इस मैदान में उतारना चाहता था, मौलाना अहमद हनीफ साहब ने बहुत पहले उतार दिया, आपके जज्बात को जिंदा किया है। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इल्हाद का दौर है, फितनों का दौर है, फितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज खत्म नबूवत के खिलाफ बहुत से महाज खुले हुए हैं, लेकिन आज हम खैरुल मदारिस के प्लेटफॉर्म पर ये ऐलान करना चाहते हैं। 2 जुमले तवज्जो से सुनिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म नबूवत के दुश्मनों का मुकाबला हर महाज पर करेंगे। ऊंची आवाज से कह दीजिए इंशाअल्लाह। हम गली चौकों चौराहों में भी करेंगे,
पार्लियामेंट में भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे। पार्लियामेंट में अल्लाह ने देवबंद का नुमाइंदा भेजा हुआ है जिसे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बहादुरों की तरह डटे हुए हैं, मदारस की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना तकी उस्मानी मैदान अमल में मौजूद है, मौलाना हनीफ जालंधरी मैदान अमल में मौजूद है। हमारे अदारों के लोग भी इस जलसे में मौजूद हैं। मैं दो जुमलों में बात कहना चाहता हूँ, हम पाकिस्तान के वफादार हैं। पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबर का किरदार है। पाकिस्तान का परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया था। करारदाद मकासिद वही लाने वाले थे। पाकिस्तान का आइन मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद देने वाले हैं। आज पाकिस्तान का आइन बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मैदान में खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत की जंग भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और पाकिस्तान के दुश्मनों से भी लड़ेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, हम पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ेंगे। दो जुमले, आज कुरान जलाया जा रहा है, कहाँ हैं अमन के अलम बरदार, कहाँ हैं इंसानियत के हुकूक का एहतराम करने वाले। आज मेरा कुरान जलाया जा रहा है, हमारा कुरान जलाया जा रहा है। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। एक काश तुम हमारे सामने होते, फिर मजा आता। पाकिस्तान का मुजाहिद उठता, उस काफिर से कहता, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, उनकी नस्लें बर्बाद होंगी। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले इस मसले का जवाब दे दिया था। आने वाले ने कहा था, शाह जी मैं अपनी किताब उठा के आग में फेंक दूं, आप कुरान को उठा के फेंक दीजिए। शाह जी शाह वलीउल्लाह के खानदान का चश्मो चराग मैदान अमल में खड़े होके बोलते हैं, फरमाया तुम्हारी गैरत तो इजाजत देती है कि तुम अपनी किताब को उठा के आग में फेंक दो, मेरी गैरत ईमानी तो इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं कुरान का अली भी उठा के आग में फेंक दूं। फरमाया जालिम, तूने फैसला करना चाहा है तो फिर आ, मेरा ईमान बोलता है किताब नहीं फेंक दे, तू अपनी किताब अपने सीने के साथ बांध, मैं कुरान को अपने सीने के साथ बांधूं, तू भी छलांग लगा दे, मैं भी छलांग लगा दूं। किताब पर तो कुछ लगा के आया हुआ था, अपने वजूद पर तो कुछ लगा हुआ नहीं था। शाह जी की बात सुनी, फबुहित अल्लज़ी कफर, काफिर भागता है। शागिर्दों ने कहा, तलामजा ने कहा, उलमा ने कहा, हजरत अगर मैदान में उतर ही जाता, फरमाया सुनो तो सही, वो कभी मैदान में उतर ही नहीं सकता था। तुम्हारी नजर उसके अल्फाज पर थी, मेरी नजर कुरान पर थी, जो कुरान बयान करता है, जो हजरत इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बना सकता है, वो इब्राहिम के पोते के दीन की सदाकत के लिए आज भी आग को गुलजार बना सकता है। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।